Hello students, welcome back. We are beginning with a new chapter in CA Intermediate paper number 1 accounting, and the title of the chapter is branch accounting. So dear students, this chapter is considered as an important one for your examinations. I would not say that it has been asked in each and every attempt till date, but still if I consider the importance of this topic, this topic as a whole is very much important because it is covering three different aspects. Yes, three different topics are covered in a single chapter, and these three topics are what? The first one is independent branches, the second one is foreign branches, and the third one is dependent branches. So three different topics are being studied in a single chapter, that is branch accounting. That is why I am taking this chapter as an important one for our examinations. Okay, so let us not waste our time and start with the chapter right away. Take out your copies, mention the heading in the copy, branch accounting. Write down along with me the heading of the chapter, branch accounting. Branch accounting. Have you all mentioned the heading? Now let us check the weightage in the new syllabus of the previous 6 attempts. The very first attempt was in May 2018, in which it was asked for 10 marks. In May 2018, this chapter of branch accounting was asked for 10 marks. The second attempt was in November 2018, wherein this chapter was ignored. It wasn't asked in the examination. There was no weightage given to this chapter. In the attempt of November 2018, this chapter was not asked. Okay. Next came the attempt of May 2019, in which it was asked for 8 marks. Okay, 8 marks was the weightage for May 2019 examination. Are you all writing along with me? Then came the attempt of November 2019, wherein again this chapter was not tested directly, but it was asked in the form of Accounting Standard 11. So when we will study the topic of foreign branch, we will also study one of the important accounting standard, that is Accounting Standard 11. So a direct question of branch was not given in the paper, but a question from AS 11 was given in the paper, which has a relation with the branch accounting also. So directly branch question was not given, but AS 11 was given in the form of branch accounting. That is why I have mentioned that it was asked for 5 marks. Okay, but this 5 marks are for AS 11, not for a branch accounts question. Then in the November 2020 examination, the cycle 1 of November 20 examination, this was asked again for 10 marks. November 2020, it was asked for 10 marks, and in cycle number 2, which happened in January 2021, this chapter was again asked for 5 marks. Okay, so this is the weightage of the past 6 attempts for CA Intermediate, new syllabus. Have you all mentioned the weightage? So considering the weightage, you would all say that, sir, it is a mediocre chapter. It is not being asked very much frequently of a higher weightage. But I would still say that you should consider this chapter as an important one, because we are about to study so many topics and different topics in this chapter, right? So do not look at the weightage part, look at the importance part from the topic point of view. Done? Have you mentioned all of the things? Okay, then I am starting my chapter with the very first topic, that is meaning of branch.
So we are trying to understand what is meant by a branch. तो वैसे जब मैं सुनता हूं ये ब्रांच वर्ड तो मुझे ब्रांच के साथ में एक और टर्म याद आता है, दैट इज अ डिपार्टमेंट। तो हमें क्या लगता है कि ब्रांच और डिपार्टमेंट सिमिलर है या ब्रांच और डिपार्टमेंट अलग अलग टर्म्स हैं? क्या लगता है आपको? आपकी ओपिनियन क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आईसीआईसीआई बैंक है तो आईसीआईसीआई बैंक का एक ऑफिस जयपुर में है और जयपुर में भी मल्टीपल लोकेशंस में उसके काफी सारे ऑफिसेज हैं, ठीक है। उसके अलावा दिल्ली में भी उसके बहुत सारे लोकेशंस में अलग अलग ऑफिसेज हैं। उसके अलावा चंडीगढ़ में, मुंबई में, जगह जगह पर अगर हम देखें तो आईसीआईसीआई बैंक के आपको बहुत सारे ऑफिसेज मिलेंगे। तो हम इसे ब्रांच बोलेंगे या हम इसे डिपार्टमेंट बोलेंगे? आप मेरा पॉइंट समझिए, ब्रांच और डिपार्टमेंट में अंतर है या नहीं, ये मेरे चैप्टर का पहला पोर्शन है। यानी पहले मैं समझूंगा ब्रांच का मतलब क्या होता है, ब्रांच के एग्जिस्टेंस की वजह से और क्या क्या चीजें मौजूद होंगी। उसके बाद हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे कि ब्रांच की अकाउंटिंग कैसे करी जाती है। आज हमारी पहली क्लास है ब्रांच की, तो ऐसा नहीं कि हम पहली क्लास के अंदर ही सारी की सारी चर्चा कर लेंगे और हमें काफी वक्त यहाँ पे बिताना है ब्रांच अकाउंटिंग को लेकर। आपको मैंने बताया कि यहाँ पे 3 डिफरेंट टॉपिक्स हैं, साथ में हमें AS 11 की भी यहाँ पे बातें करनी है। तो आप मान के चले कि कम से कम 18 से 20 घंटे 18 to 20 आवर्स हमें इस चैप्टर को डिवोट करने पड़ेंगे, तब जाके हमारा चैप्टर अच्छे से खत्म हो पाएगा, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी मच पेशेंट। ऐसा नहीं कि सब कुछ हम पहली क्लास में सीखने वाले हैं, नहीं बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, सुनेगा बहुत ध्यान से। ब्रांच अकाउंट्स एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि ब्रांच और डिपार्टमेंट सेम चीजें नहीं है, ब्रांच और डिपार्टमेंट अलग अलग चीजें हैं। सुनेगा आप ध्यान से। मान लेते हैं एक एंटिटी है, एंटिटी का नाम है बिग बाजार। आई होप सबने बिग बाजार के बारे में सुना हुआ है। यस, लेट अस से कि आप बिग बाजार में एंटर हुए और बिग बाजार में एंटर होने के बाद में आपको काफी सारे वहां पे अलग अलग काउंटर्स नजर आ जाते हैं। एक काउंटर वहां पे ग्रोसरीज के लिए है, एक काउंटर वहां पे क्लोथिंग के लिए है, एक काउंटर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, एक काउंटर किचन आइटम्स के लिए भी है, एक काउंटर अलग से हाउस होल्ड सप्लाईज के लिए है, एक काउंटर में आपको अलग से कॉस्मेटिक्स वगैरह मिल जाते हैं। तो बच्चों काफी सारी चीजें हैं बिग बाजार में। जैसे आप बिग बाजार एंटर करते हैं तो आपको बहुत सारे अलग अलग डिविजन्स दिखाई पड़ते हैं। क्या हम इन डिवीजन को ब्रांच बोलेंगे या फिर हम इन डिवीजन को डिपार्टमेंट बोलेंगे? क्वेश्चन ये है। तो बच्चों ये जो बिग बाजार अलग अलग वेराइटीज में डील कर रहा है और उसने अलग अलग वेराइटीज को डिवाइड किया हुआ है एट डिफरेंट प्लेसेस, इसको तो हम क्या बोलते हैं? डिपार्टमेंट। यानी ग्रोसरी का डिपार्टमेंट अलग है, क्लोथिंग का डिपार्टमेंट अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स का डिपार्टमेंट अलग है। बट एक ही पर्टिकुलर सिटी में बिग बाजार काफी सारी लोकेशंस पे भी मौजूद है। तो ये जो अलग अलग लोकेशंस पे बिग बाजार के आउटलेट्स बने हुए हैं, इसको अपन क्या बोलेंगे? ब्रांच बोलेंगे। और उसके अलावा सेम सिटी के अलावा आउटसाइड द सिटी, फॉर एग्जाम्पल जयपुर में भी है, दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है, कैलकाटा में भी है, तो ये सब इसके क्या बनेंगे? ब्रांचेस। सो अलग अलग लोकेशंस पे यूनिट्स का प्रेजेंट होना इज नोन एज व्हाट? अ ब्रांच। बट विद इन द सेम ऑफिस अलग अलग डिविजन्स कर देना, दैट इज नोन एज व्हाट? अ डिपार्टमेंट। जनरली डिपार्टमेंट सेम लोकेशंस पे होते हैं, डिफरेंट लोकेशंस पे नहीं होते, जनरली बता रहा हूं, ठीक है। एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, बट आप फंडामेंटली यहां पे डिफरेंस समझने का ट्राई करिए कि ब्रांच का मतलब क्या है और डिपार्टमेंट का मतलब क्या है। यानी विद इन दी आईसीआईसीआई बैंक हम देखते हैं कि कैश काउंटर है जहां पे कैश का डिपॉजिट हो रहा है और कैश का विड्रॉवल हो रहा है, तो वो कैश का डिपॉजिट एंड विड्रॉवल का डिपार्टमेंट है। उसके अलावा एक जगह ऐसी है जहां पे हम लोग लोन सैंक्शनिंग करा सकते हैं, तो वो लोन का डिपार्टमेंट है, ठीक है। एक जगह पर हम चेक को डिपॉजिट कराते हैं, चेकबुक इशू कराते हैं, पासबुक की प्रिंटिंग कराते हैं, तो वो उसका एक अलग डिपार्टमेंट है। सो डिपार्टमेंट इज विद इन द सेम ऑफिस, विद इन द सेम लोकेशन, बट ब्रांच इज एसेंशियली एट अ डिफरेंट लोकेशन। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो सवाल ये उठता है कि सर ब्रांच का पर्पस क्या है? हमने ब्रांच क्यों ओपन करा होगा, ब्रांच क्यों एस्टैब्लिश करा होगा?
जब भी हम बिजनेस को एक्सपैंड करने के बारे में सोचते हैं तो ब्रांच का ये जो कॉन्सेप्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नेशन वाइड एक्सपेंशन चाहिए या अगर आपको सेम सिटी में भी एक्सपेंशन चाहिए तो एक ही जगह पर ऑफिस ओपन करने से ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम कस्टमर्स के बहुत नजदीक नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम एंगेज्ड ओनली इन द ऑफलाइन कोचिंग, अगर मैं केवल ऑफलाइन कोचिंग ही करूंगा तो मैं एक बहुत सीमित एरिया तक पढ़ा सकता हूं, एक बहुत लिमिटेड वे में पढ़ा सकता हूं, क्योंकि जो भी बच्चे हमारी रीच में होंगे केवल वही हमारे ऑफिस में आकर पढ़ाई कर सकते हैं, हमारे लोकेशन पे आकर पढ़ाई कर सकते हैं। बट जैसे डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा उनके लिए ट्रैवल करना बहुत डिफिकल्ट होगा एंड दे विल ट्राई टू अवॉइड टू कम एट अवर कोचिंग सेंटर। सो व्हाट वी कैन डू टू एक्सपैंड अवर बिजनेस, वी कैन ओपन सर्टेन ब्रांचेस in a single city or we can open multiple branches in multiple cities। उससे क्या होगा, हमारा रीच बढ़ेगा, हमारा एंगेजमेंट ज्यादा होगा स्टूडेंट के साथ में और बिजनेस भी डेफिनेटली क्या होगा, इंप्रूव होगा और इंक्रीज होगा। तो जब भी अपन बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं डेफिनेटली ब्रांच का कॉन्सेप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ब्रांच बेसिकली क्या वर्क परफॉर्म करेगा, जो वर्क हेड ऑफिस परफॉर्म करता है कुछ वैसा ही वर्क ब्रांच भी परफॉर्म करेगा। यस, फॉर एग्जाम्पल हेड ऑफिस इज डीलिंग इन क्लोथिंग डिपार्टमेंट, मतलब क्लोथिंग का जो काम है वो हेड ऑफिस करता है, तो ऑब्वियसली बात है ब्रांच भी किस में डील करेगा, क्लोथिंग में ही डील करेगा, तभी तो एक्सपेंशन होगा बिजनेस का। हम यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। जिस चीज में आप डील कर रहे हैं, जिस एक्टिविटी को आप परफॉर्म कर रहे हैं, उसी एक्टिविटी को आप बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उसकी रीच आप बढ़ाना चाहते हैं, तो अपन क्या ओपन करते हैं, ब्रांच ओपन करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर ब्रांच हमने ओपन करा है तो डेफिनेटली क्या अवेलेबल होना चाहिए, हेड ऑफिस भी अवेलेबल होना चाहिए। यस, अ ब्रांच कैन नेवर एग्जिस्ट विदाउट अ हेड ऑफिस। फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्रांच देयर हैज टू बी सम हेड ऑफिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी हेड ऑफिस किसी पर्टिकुलर सिटी में लोकेटेड है तो जो ब्रांच होगा वो उस सिटी में भी हो सकता है या ब्रांच उस सिटी के बाहर भी हो सकता है। इनफैक्ट ब्रांच किसी और कंट्री में भी हो सकता है एंड ब्रांच एक नहीं मल्टीपल भी हो सकती है। देयर इज नो लिमिट टू द ब्रांचेस कि आपको इतनी ब्रांच ओपन करनी है। इट डिपेंड्स हाउ फार यू वांट टू गो। द फार यू वांट टू गो द मोर ब्रांचेस यू विल बी नीडिंग फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस। In India, we can see that all the major banks have a very good network of the branches, especially State Bank of India. State Bank of India is having around 15,000 branches all over so that it can serve its customers. अब सोचिए अगर SBI का केवल एक ही ऑफिस होता और मुंबई में होता तो क्या इतने सारे कस्टमर्स SBI से डीलिंग कर पाते? पॉसिबल ही नहीं था। Imagine you live in you are living in Delhi and you want to transact, you want to deposit some cash in SBI, but SBI is only in Mumbai. Should it be possible for you to travel each and every day to Mumbai and to deposit the cash and come back again? No, it is not possible. So branches are very helpful to engage the customers at different locations. And branch is basically dealing only in the same kind of business that is dealt by the head office. Okay, so branch and the head office are into the same line of business activity, but the difference is that head office is in some different location and the branch is in some different location. Of course, head office and branch are interrelated or interdependent to each other, because branch will be dealing under the orders of what? Head office, because branch is basically what? It is a unit of the head office only. So you can say that here head office is the principal, but the branch is what? A kind of an agent. Okay, that is helping you in the expansion of its principal business. Are you getting my point? सब बच्चों को ब्रांच का मीनिंग समझ में आ रहा है? ब्रांच और डिपार्टमेंट में जो डिफरेंस था क्या आपको वो समझ में आया? डिपार्टमेंट बेसिकली क्या है? आप ही के फर्म के विद इन एक डिवीजन है। जो हमारा बिजनेस है उसकी अलग अलग एक्टिविटीज को हमने डिवाइड कर दिया, उसको अपन क्या बोलते हैं? डिपार्टमेंट। जैसे कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, लेट अस से रिलायंस, तो रिलायंस ने अपने डिविजन्स क्रिएट कर दिए। परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट,
ट्रेजरी डिपार्टमेंट, इस तरह से डिपार्टमेंट्स बना दिए। तो डिपार्टमेंट्स क्या करते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज में एंगेज करते हैं। बट जहां तक ब्रांच की है तो ब्रांच के अंदर भी डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, बट ब्रांच एक सेपरेट यूनिट है जो अपने आप से फंक्शन करता है एज डिफरेंट फ्रॉम द हेड ऑफिस। बट इनका जो एक्टिविटी होगा वो बिल्कुल सिमिलर होगा। जो एक्टिविटी हेड ऑफिस में होती है, कुछ वैसी एक्टिविटीज ब्रांच में भी होंगी। राइट? बात समझ में आ रही है सबको? तो लिखेंगे बच्चों मीनिंग ऑफ ब्रांच। मीनिंग ऑफ ब्रांच, branch is a separate unit. Branch is a separate unit of a business enterprise. Branch is a separate unit of a business enterprise that enables the expansion of operations or business of an enterprise। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस या ऑपरेशंस को एक्सपैंड करने के लिए जो आपने एक सेपरेट यूनिट बनाया, उसी को अपन क्या कह देते हैं, ब्रांच। ओके, इतना पॉइंट समझ में आ रहा है? आगे लिखेंगे हम ब्रांचेस carry on the same activity. Branches carry on the same activity as the head office। तो ब्रांचेस वही एक्टिविटी कैरी करती हैं जो हेड ऑफिस में परफॉर्म करी जाती है, यानी कि सेम लाइन ऑफ बिजनेस में एंगेज होगा ब्रांच इन अलोंग विथ व्हाट, द हेड ऑफिस। इट मीन्स दैट line of business remains the same. Line of business remains the same. This is a very, very important distinction between the branch and department. In different departments, there are different activities, but in different branches, activities might not be different, they might be the same. कुछ चेंजेस हो सकते हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं लोकेशंस के हिसाब से, बट प्रिंसिपली जो एक्टिविटी है वो सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स की ब्रांचेस, बच्चों मैकडोनल्ड्स की ब्रांचेस ऑल ओवर दी वर्ल्ड हैं, बट जरूरी नहीं है कि हर मैकडोनल्ड्स पे जो मेन्यू है वो सेम रहेगा, मेन्यू डिफरेंट भी हो सकता है। बट आप देखिए जो बिजनेस करने का तरीका है वो बिल्कुल बराबर है। मैकडोनल्ड्स बेसिकली फूड चेन इंडस्ट्री है, तो सारे के सारे मैकडोनल्ड्स फूड में ही डील करते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि वहां पे आपको क्लोथिंग भी मिलना शुरू हो जाएगा, नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, मेन्यू का डिफरेंस हो सकता है रीजन वाइज, लोकेशन वाइज, बट जो बिजनेस का एक्टिविटी है, जो लाइन है, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इट विल नॉट चेंज। ओके, यानी कि मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, यहां पे अपन डाइवर्सिफिकेशन की बात नहीं कर रहे, हम डिफरेंट फील्ड में एंटर नहीं कर रहे। इफ माई कोचिंग इंस्टीट्यूट इज टेकिंग अप द कॉमर्स और फिर हम एक्सपैंड करते हैं इनटू साइंस, तो ये ब्रांच नहीं कहलाता है, ये एक अलग डिपार्टमेंट हो गया। पहले हम केवल कॉमर्स में थे, अब हम साइंस में भी एंटर होना चाहते हैं, तो ये डाइवर्सिफिकेशन है। ओके, ये ब्रांच नहीं है। ब्रांच का मतलब क्या है, सेम बिजनेस को हम आगे और बढ़ाना चाहते हैं, उसकी रीच हम बढ़ाना चाहते हैं, उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं टू डिफरेंट लोकेशंस। गॉट माय पॉइंट? आगे लिखते हैं ब्रांचेस are of the following types.
कौन कौन से टाइप्स की ब्रांचेस हो सकती हैं? सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा है इनलैंड ब्रांचेस। आपको समझ में आ रहा होगा नाम से, इनलैंड ब्रांचेस, यानी कि सेम कंट्री में ब्रांच अगर हो जाएगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे? इनलैंड ब्रांचेस। सो इफ माय हेड ऑफिस इज इन इंडिया एंड द ब्रांच इज आल्सो इन इंडिया, इट इज व्हाट? एन इनलैंड ब्रांच। इफ ब्रांच is in the same country in which head office is located, it is in the same country in which the head office is located, comma, it is an inland branch। बच्चों अगर ब्रांच सेम कंट्री में होगा, अगर उसी कंट्री में होगा जहां पे हमारा हेड ऑफिस है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इनलैंड ब्रांच। और यहां पे हमने क्या करा? इनलैंड ब्रांच को डिवाइड करा। दीज आर डिवाइडेड इनटू, मैं इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा जिसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला डिवीजन है इंडिपेंडेंट ब्रांच। हमने इनलैंड ब्रांच को डिवाइड करा सबसे पहले इनटू इंडिपेंडेंट ब्रांच। उसके बाद हमने यहां पे लिखा है बच्चों डिपेंडेंट ब्रांच। ओके, इंडिपेंडेंट ब्रांच एंड डिपेंडेंट ब्रांच आर द कैटेगरीज ऑफ व्हाट? इनलैंड ब्रांचेस। समझ में आ रहा है? ब्रांच को हमने दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करा है। वन इज द इनलैंड ब्रांच, सेकंड इज द फॉरेन ब्रांच। इनलैंड ब्रांच में दो सब कैटेगरीज आ गई, इंडिपेंडेंट ब्रांच एंड डिपेंडेंट ब्रांच। नाउ द नेक्स्ट मेन कैटेगरी इज फॉरेन ब्रांचेस। अगेन ये भी आपको हेडिंग से क्लियर हो जाएगा। फॉरेन ब्रांचेस, अगर ब्रांच और हेड ऑफिस अलग अलग कंट्रीज में लोकेटेड होंगे तो इसे हम क्या कहेंगे? फॉरेन ब्रांचेस। So if branch is located in a country, ध्यान रखें यहां पे अपन सिटी की बात नहीं कर रहे, टाउन की बात नहीं कर रहे, कंट्री को ही बदल देते हैं। अगर हेड ऑफिस दिल्ली में है और ब्रांच भी दिल्ली में है, ये इनलैंड ब्रांच है। अगर हेड ऑफिस दिल्ली में है, ब्रांच मुंबई में है, अगेन इनलैंड ब्रांच है। बट अगर हेड ऑफिस दिल्ली में है और ब्रांच वॉशिंगटन में है, दैट इज अ फॉरेन ब्रांच। सो इफ ब्रांच इज लोकेटेड इन अ कंट्री which is different from different from the country in which head office is located, comma, it is a foreign branch। तो बच्चों फॉरेन ब्रांच वो है जो सेम कंट्री में नहीं लोकेटेड है जहां पे हेड ऑफिस है। हेड ऑफिस का कंट्री कुछ और है और ब्रांच का कंट्री कुछ और है, तो ऐसी ब्रांच को अपन क्या कह देंगे? फॉरेन ब्रांच। ओके, क्या फॉरेन ब्रांच में भी हम लोग डिस्टिंक्शन कर पाएंगे इनटू इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट ब्रांच? द आंसर इज नो। इन फॉरेन ब्रांच इट इज ओनली एन इंडिपेंडेंट ब्रांच। तो मैं यहां पे लिखूंगा दीज ब्रांचेस आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट। इसके पीछे रीजन क्या है, जब हम टॉपिक में आगे बढ़ेंगे आपको अपना आप समझ में आ जाएगा। दीज ब्रांचेस आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट।
जैसा मैंने आपको कहा कि आज पहली क्लास है, पूरा का पूरा टॉपिक हम फर्स्ट क्लास में डिस्कस नहीं कर सकते. वी हैव टू गो पीस बाय पीस. ओके, वन बाय वन वी विल स्टडी द टॉपिक और आपको सारी बातें अपने आप समझ में आएंगी. सो फॉरेन ब्रांचेस आर नॉट क्लासिफाइड इनटू इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, दे आर ऑलवेज एंड ऑलवेज इंडिपेंडेंट. ओके, इसीलिए आपको मैंने कहा था कि यहाँ पे हम 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे: इंडिपेंडेंट ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच एंड द फॉरेन ब्रांच. ओके, राइट? कॉपी कर ले जरा अगर कुछ भी आपने मिस करा है. Till now we have just covered the basic part of this chapter, nothing else. हमने अभी तक सिर्फ ब्रांच का मीनिंग समझा है और कुछ भी नहीं पढ़ा. So has everyone noted the concept? So everyone has noted this concept? So before moving further, we are just having a quick recap of what we have studied till now. तो बच्चों, अभी तक मैंने आपको केवल ये समझाया है कि ब्रांच का मीनिंग क्या है. एक बार रिवाइज करें फिर से जरा. ब्रांच का मीनिंग क्या हुआ? ब्रांच बेसिकली एक यूनिट है. किसका यूनिट है? हेड ऑफिस का यूनिट है. यानी कि जब भी हम ब्रांच की बात करेंगे तो डेफिनेटली किस चीज का एग्जिस्टेंस माना जाएगा? हेड ऑफिस का एग्जिस्टेंस भी सपोज किया जाएगा. यानी कि जब भी ब्रांच की बात होगी तो डेफिनेटली हेड ऑफिस भी होगा. हेड ऑफिस के बिना ब्रांच का होना पॉसिबल नहीं है. सो बेसिकली ब्रांच इज अ यूनिट ऑफ व्हाट? इट इज अ यूनिट ऑफ द हेड ऑफिस that has been established to expand the business. Okay, so branch को establish किया जाता है हेड ऑफिस के बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, कस्टमर्स के ज्यादा नजदीक पहुंचने के लिए. अगर हम एक ही लोकेशन से अपने कस्टमर्स को सर्व करेंगे तो हम ज्यादा कस्टमर्स को सर्व नहीं कर पाएंगे. बट इफ यू वांट कि हम मैक्सिमम कस्टमर्स कवर कर पाएं, अगर हम वाइड एरिया कवर कर पाएं, तो ब्रांच इसमें एक हेल्पफुल कॉन्सेप्ट माना जाता है. ठीक है, फिर हमने समझा कि ब्रांच और डिपार्टमेंट का डिफरेंस क्या होता है. तो मैंने आपको बिग बाजार का एग्जांपल लेके समझाया था कि जहां पे हम बिग बाजार में एंटर होते हैं तो हमारे पास अलग से ग्रोसरी का एक सेक्शन होता है, एक सेक्शन क्लोथिंग का है, एक सेक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स का है, होम एसेंशियल्स का है. तो बच्चों ये सब तो क्या है? डिपार्टमेंट्स हैं. बट अगर बिग बाजार की आपको जगह जगह पर आउटलेट्स मिल जाते हैं, अपने ही शहर में आपको 4-5 अलग अलग लोकेशंस पे उसके आउटलेट्स दिखते हैं, तो उसी को अपन क्या कहते हैं? ब्रांच कहते हैं. ठीक है, तो ब्रांच डेफिनेटली अलग अलग लोकेशंस पे होता है, बट जो डिपार्टमेंट्स हैं वो एसेंशियली सेम लोकेशन पे होते हैं. ठीक है, आपको मैंने कहा था बहुत बार इसका एक्सेप्शंस आपको मिल सकते हैं, बट जनरली आपको ये मानना है डिपार्टमेंट सेम लोकेशंस पे होंगे और ब्रांच अलग अलग लोकेशंस पे होंगे. ठीक है, अब लोकेशन के हिसाब से हमने ब्रांच को आगे जाके क्लासिफाई करा इनटू 2 डिफरेंट हेडिंग्स. वन इज द इनलैंड ब्रांच, अदर इज द फॉरेन ब्रांच. ऐसी ब्रांच जो आपके ही देश में है उसको अपन क्या बोलते हैं? इनलैंड ब्रांच. सेम कंट्री में, जिस कंट्री में हेड ऑफिस है उसी कंट्री में ब्रांच हो जाए तो वो है इनलैंड ब्रांच. बट अगर हेड ऑफिस का कंट्री कुछ और है और ब्रांच का कंट्री कुछ और है तो इस कंडीशन को अपन क्या बोल देते हैं? फॉरेन ब्रांच. फॉरेन ब्रांचेस हमेशा हमेशा इंडिपेंडेंट होंगी, बट जो इनलैंड ब्रांचेस हैं वो इंडिपेंडेंट भी हो सकती हैं और डिपेंडेंट भी हो सकती हैं. तो आप देखिए, मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि हमें इस चैप्टर में 3 मेजर टॉपिक्स पढ़ने होंगे: इंडिपेंडेंट ब्रांच, फॉरेन ब्रांच एंड डिपेंडेंट ब्रांच. तो आप समझिए, अब हम उन्हीं 3 टॉपिक्स को आगे पढ़ने वाले हैं. यानी कि अब जो मेरा पहला डिस्कशन, चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू होने वाला है वो है इंडिपेंडेंट ब्रांचेस को लेकर. ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे सर फिर आप फॉरेन ब्रांच का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग से कवर क्यों कर रहे हैं? कवर करना जरूरी है, क्योंकि इंडिपेंडेंट ब्रांच के केस में क्या होगा, हम लोग ये मानते हुए चलेंगे कि जो हमारा ब्रांच है और हेड ऑफिस है वो सेम कंट्री में है. यानी जब मैं पढ़ाऊंगा आपको इंडिपेंडेंट ब्रांच तो आई एम टॉकिंग अबाउट द इनलैंड ब्रांच, तो वहां पे एचओ एंड ब्रांच सेम कंट्री को बिलोंग करेंगे. बट फॉरेन ब्रांच में एचओ एंड ब्रांच अलग अलग कंट्री को बिलोंग करेंगे, इसलिए फॉरेन ब्रांच का टॉपिक अलग से कवर करना
जरूरी होगा। ठीक है, और जब हम लोग यहाँ पे चैप्टर का वेटेज लिख रहे थे प्रीवियस एग्जामिनेशंस के दौरान, तो आपको मैंने कहा भी था कि नवंबर 19 के एग्जाम में ब्रांच से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया। फॉरेन ब्रांच का जो AS11 का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे पूछा गया 5 नंबर का, यानी ब्रांच के चैप्टर से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आया बट AS11 मिक्स करके आया, इसलिए भी फॉरेन ब्रांच को अलग से पढ़ना जरूरी है। बात समझ में आ रही है? तो हमारे चैप्टर का फ्लो कैसे बनने वाला है, पहले पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट ब्रांच को, फिर पढ़ेंगे फॉरेन ब्रांच को, और उसके बाद आएंगे डिपेंडेंट ब्रांचेस पर। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? तो डालेंगे मेरे साथ में आप एक नया हेडिंग, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। पुट डाउन द हेडिंग इंडिपेंडेंट ब्रांचेस, और यहां से हमारा चैप्टर का अब जो मेजर डिस्कशन है बच्चों वो शुरू होने वाला है। इंडिपेंडेंट ब्रांचेस, आप सभी को डालना है ये हेडिंग अपनी कॉपीज में, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। लिख लिया है सबने? चलिए जी, समझना शुरू करेंगे और सुनिएगा बहुत ध्यान से। अभी इसके बाद में कुछ भी नहीं लिखना, पहले आप सुनेंगे मेरी बात को बहुत बढ़िया तरीके से, फिर जब मैं लिखूंगा तब आप मेरे साथ में नोट डाउन करेंगे। हाँ जी, इंडिपेंडेंट ब्रांच। तो इंडिपेंडेंट वर्ड अराइज हुआ फ्रॉम द वर्ड इंडिपेंडेंस, एंड इंडिपेंडेंस मीन्स व्हाट? फ्रीडम, ऑटोनॉमी। ठीक है, तो अब ब्रांच को आप कब कहेंगे, ब्रांच को आप आजाद कब कहेंगे, और ब्रांच को निर्भर कब कहेंगे? यानी कि आजादी और निर्भरता ये दोनों अलग अलग टर्म्स है। निर्भरता इज व्हाट? डिपेंडेंट, एंड आजाद इज व्हाट? इंडिपेंडेंट। यानी कि इंडिपेंडेंट ब्रांच को समझने के लिए हमें समरी फॉर्म में ये भी समझना पड़ेगा कि डिपेंडेंट ब्रांच क्या होती है। ओके, सो डिपेंडेंट ब्रांच इज बेसिकली अ ब्रांच दैट इज डिपेंडेंट ऑन द हेड ऑफिस, whereas independent branch is a branch that is not dependent on the head office। अब बच्चों ये डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस किस चीज का है? क्या ये डिसीजन लेने का डिपेंडेंस है या इंडिपेंडेंस है? क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस है? क्या ये पावर्स का डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस है? नो, इनमें से कुछ भी नहीं है। मेन जो यहाँ पे डिस्टिंक्शन है डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस का वो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के प्रिपरेशन को लेकर। आप समझ पा रहे हैं? यानी बच्चों अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी अपन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की बात करेंगे तो यहां पे हम ये नहीं कह सकते कि आपके पास इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है या नहीं है, आप अपने डिसीजन स्वयं ले सकते हैं नहीं ले सकते, नहीं, इसकी बात नहीं कर रहे। हम केवल यहाँ पे ये चर्चा कर रहे हैं कि जो ब्रांच है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद मेंटेन कर पाता है या नहीं कर पाता। इफ द ब्रांच इज मेंटेनिंग इट्स ओन सेट ऑफ लेजर, जर्नल, ट्रायल बैलेंस, it is enabling itself to make its own financial statements, that is known as what? An independent branch। so it means that if the branch is dependent, अगर ब्रांच डिपेंडेंट होगा तो क्या वो खुद से नहीं मेंटेन करेगा? जी हाँ बच्चों, वो खुद से मेंटेन नहीं करेगा। यानी कि अगर ब्रांच के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हेड ऑफिस के सर पे आ जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट ब्रांच। बट अगर ब्रांच itself is maintaining its own set of books of accounts, it is maintaining its own trial balance, it is doing the entries by following the double entry system of accounting, it is capable of preparing its own financial statements, that is known as what? An independent branch। now the important point is कि सर ये कॉन्सेप्ट जो है वो अराइज क्यों हुआ? why do we need an independent branch? so assume an example, let us say State Bank of India, that is having a very wide network of the branches. There are 15,000 plus branches with State Bank of India all over. So if State Bank of India is opening up dependent branches, सोचिए अगर State Bank of India dependent branch open कर लेगा तो उसके हेड ऑफिस के लिए कितना कठिनाई वाला काम हो जाएगा। शायद वो पूरे दिन भर में भी 15,000 ब्रांचेस की डेली ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग नहीं कर पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। और अगर करना है तो फिर उसको रिकॉर्ड करने के लिए कितना सारा मैन पावर चाहिए होगा। आपको कम से कम हर एक ब्रांच के लिए 3 से 4 आदमी अपॉइंट करने पड़ेंगे केवल इस काम के लिए कि वो अकाउंटिंग कर पाए उस ब्रांच की, क्योंकि डेली हर ब्रांच में बहुत सारा ट्रांजैक्शन इंकर होता है, मल्टीपल टाइम्स कैश डिपॉजिट होते हैं, मल्टीपल टाइम कैश का विड्रॉवल होता है, मल्टीपल टाइम्स लोन सैंक्शन होते हैं, लोन के रीपेमेंट्स आते हैं, इतने सारे काम होते हैं बैंक में। अगर 15,000 ब्रांचेस को डिपेंडेंट बना दिया जाए तो आप सोचिए हेड ऑफिस तो बेचारा पगला जाएगा, उसके जो एम्प्लॉइज हैं परेशान हो जाएंगे। तो डिपेंडेंट ब्रांच वहां पे ओपन करें जहां पे साइज थोड़ा कम हो,
स्केल ऑफ ऑपरेशंस कम हो, बट अगर बिजनेस का साइज काफी बड़ा है तो वी कैन नॉट थिंक ऑफ द डिपेंडेंट ब्रांच, वी हैव टू डेफिनेटली ओपन अप व्हाट, एन इंडिपेंडेंट ब्रांच. So basically all the major banks in India are using what? They are using the concept of independent branches. They cannot open up a dependent branch. आपको मेरी बात समझ में आ रही है? डिपेंडेंट ब्रांच वहां पे सूटेबल है जहां पे आपका साइज ऑफ ऑपरेशंस छोटा है, आपका नेटवर्क एरिया कम है. बट अगर नेटवर्क एरिया वाइड है, ब्रांचेस का नंबर ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा वेरिएशन है ब्रांचेस का, तो बच्चों वहां पे हमें क्या ओपन करना चाहिए? इंडिपेंडेंट ब्रांच ओपन करना चाहिए. तो आई होप सबको ये फंडा समझ में आ रहा है. इंडिपेंडेंट ब्रांच एक ऐसी ब्रांच है जो अपने सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद से मेंटेन कर सकता है, उसको हेड ऑफिस पे डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है. इट इज केपेबल ऑफ मेंटेनिंग इट्स ओन सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, whereas a dependent branch is dependent on the head office for maintaining its own set of books of accounts. Is the simple distinction clear to everyone or not? Yes? Then you will all write along with me now. Independent branches. Start writing. Those branches that maintain a separate set of books of accounts, that maintain a separate set of books of accounts and can prepare their own financial statements. They are capable of preparing their own financial statements also, and can prepare their own financial statements, comma, are classified as independent branches. So have you all understood the difference between dependent and independent? On a summary basis, dependent branches do not maintain their own set of books of accounts, whereas independent branches will maintain their own set of books of accounts. Okay? Have you got the point now? Independent branches. तो अब आप समझ सकते हैं, आपको मैंने कहा था फॉरेन ब्रांच हमेशा इंडिपेंडेंट होगी. क्यों होगी? क्योंकि फॉरेन ब्रांच किसी और कंट्री में है. जब कोई ब्रांच किसी और कंट्री में है और हेड ऑफिस किसी और कंट्री में है, तो ऑब्वियस सी बात है हेड ऑफिस कभी भी ब्रांच के अकाउंटिंग खुद से नहीं कर पाएगा, क्योंकि ब्रांच जिस कंट्री में सिचुएटेड है वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ और है, वहां के लॉज कुछ और हैं, वहां की करेंसी कुछ और है. तो ऐसी कंडीशन में जो ब्रांच है वो कभी भी डिपेंडेंट हो ही नहीं सकती. इट इज ऑलवेज एन इंडिपेंडेंट ब्रांच. बट अगर ब्रांच और एचओ सेम कंट्री में है तो वहां पे हम सोच सकते हैं बिजनेस के साइज के अकॉर्डिंग, अगर साइज बहुत ज्यादा है, अगर वास्ट बिजनेस है, स्केल ऑफ ऑपरेशन काफी बड़ा है, तो डेफिनेटली हमें क्या ओपन करना चाहिए? इंडिपेंडेंट ब्रांच. बट अगर साइज ऑफ ऑपरेशन कम है तो हम डेफिनेटली डिपेंडेंट ब्रांच के कॉन्सेप्ट का भी सोच सकते हैं. ओके, इतनी बात क्लियर हुई. अब बढ़ते हैं चैप्टर में आगे कि हमें करना क्या है. तो बच्चों यहां पे हमें बेसिकली अकाउंटिंग समझनी है कि इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में फाइनली हम लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, ये बात हमको समझनी है. अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको समरी में समझाता हूं. लेट अस से देयर इज अ हेड ऑफिस. ओके, देयर इज अ हेड ऑफिस व्हिच इज लोकेटेड इन पुणे. ओके, सो इन पुणे there is a head office of a very renowned company. Now it has branches all over India. Okay, all over India it has a variety of branches in different cities. In some of the cities it even has more than 5 to 6 branches. So let us say all over India
It has a network of 140 branches. ओके, पूरे इंडिया में 140 ब्रांचेस का नेटवर्क है. आप देख सकते हैं ब्रांच का नंबर बहुत ज्यादा है. इसका मतलब बिजनेस की डीलिंग्स भी काफी वास्ट होती हैं. तो ये जो सभी ब्रांचेस हैं, दे आर ऑल इंडिपेंडेंट ब्रांचेस. ओके, these are all independent branches. 140 branches plus one head office. So in this entire group, there are basically 141 units. Yes or no? There are 141 business units, out of which 140 are the branches and one is the head office. Now we have to learn the concept of preparing the financial statements together as a group. Okay, so what I mean to say is we have to first of all learn the concept of preparation of financial statements for the branches individually. यानी कि यहाँ पे जो 140 ब्रांचेस हैं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, तो वो अपनी अपनी अकाउंटिंग अलग से करेंगे. यस और नो? यस. तो 140 ब्रांचेस का हमारे पास में ट्रायल बैलेंस अवेलेबल होगा. 140 ब्रांचेस का हमारे पास ट्रेडिंग एंड P&L अवेलेबल होगा. 140 ब्रांचेस का बैलेंस शीट भी अवेलेबल होगा. इन द सेम वे हमारे पास हेड ऑफिस जो कि पुणे में लोकेटेड है, उसका भी हमारे पास में ट्रेडिंग एंड P&L होगा, उसका भी बैलेंस शीट होगा, उसका भी ट्रायल बैलेंस होगा. बट इमेजिन कि क्या हम 141 यूनिट्स का जो ट्रेडिंग एंड P&L है, वो क्या अपने एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूजर्स को प्रोवाइड कर पाएंगे? इट इज नॉट पॉसिबल. लेट अस से कि आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, रिनाउंड कंपनी है, आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, और आपको इस कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, जो प्रॉफिट की पोजीशन है, उसको जज करना है. तो क्या आप इन पूरे 141 यूनिट्स का ट्रेडिंग एंड P&L चेक करेंगे? नहीं चेक कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है, ना अवेलेबल होगा. जरा सोचिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 15,000 प्लस ब्रांचेस हैं. जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स, अपने हाफ ईयरली रिजल्ट्स और अपने ईयरली रिजल्ट्स को डिक्लेयर करता है, तो क्या वो ब्रांच वाइज करता है डिक्लेरेशन? नहीं. SBI एज अ होल ग्रुप आपको रिजल्ट मालूम चलता है कि पूरे साल भर में या पूरे क्वार्टर में या पूरे हाफ ईयर में SBI ने कैसे परफॉर्म करा है, उसके शेयर कैपिटल कितने से कितनी हो गई, उसका प्रॉफिट कितने से कितना हो गया. बट क्या आपको हर ब्रांच का इंडिविजुअल पैटर्न मालूम चलता है? नहीं चलता. तो बच्चों, हमें वही जो कॉन्सेप्ट है यहां पे समझना है कि कभी भी हम पूरी दुनिया को ये नहीं बताते कि हमारे इस ब्रांच का प्रॉफिट इतना है, हमारे इस ब्रांच में ये असेट्स है, हमारे ये ब्रांच में लायबिलिटीज है. नो. सभी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन कंसोलिडेट करके एक सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोड्यूस करना पड़ता है, एक सिंगल बैलेंस शीट देनी होती है, एक सिंगल ट्रेडिंग एंड P&L देना होता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यही जो कॉन्सेप्ट है वो हमें समझना है इस चैप्टर में. इफ देयर आर मल्टीपल ब्रांचेस एंड दे आर ऑल ऑफ द इंडिपेंडेंट नेचर, देन हाउ विल यू रिफ्लेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ दिस एंटायर कंपनी और द बिजनेस एंटरप्राइज एज अ होल? आप इसका प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, यही बात मैं आपको इस चैप्टर में सिखाने वाला हूं अंडर द टॉपिक ऑफ इंडिपेंडेंट ब्रांचेस. आर यू गेटिंग द थीम ऑफ द चैप्टर नाउ कि हम पढ़ने क्या वाले हैं आगे फर्दर सेशंस के अंदर? ठीक है. और वैसे भी अभी हम कुछ घंटों तक, मतलब कि कुछ क्लासेस तक हम लोग डेफिनेटली इंडिपेंडेंट ब्रांचेस की ही बात करेंगे. जब ये टॉपिक खत्म होगा फिर मैं आपको फॉरेन ब्रांच पे लेकर जाऊंगा और अंत में मैं आपको डिपेंडेंट ब्रांच पे लेकर जाऊंगा. ठीक है. तो अभी कुछ समय आपको ये नहीं सोचना कि सर फॉरेन ब्रांच क्या है, कुछ समय आपको ये भी ध्यान नहीं देना है कि सर डिपेंडेंट ब्रांच क्या थी, वो आगे अपन फिर से पढ़ेंगे. अभी केवल आपको ये सोचना है इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या है. तो ऐसी ब्रांच जो अपने सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद से मेंटेन करता है, उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट ब्रांच. राइट. तो क्योंकि ब्रांच इंडिपेंडेंट है और बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस हैं, तो मेरे पास बहुत सारे अलग अलग ट्रेडिंग एंड P&L अवेलेबल हैं, मेरे पास बहुत सारे अलग अलग बैलेंस शीट अवेलेबल हैं. बट जो हमारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, क्या हम उनको इतने सारे प्रॉफिट एंड लॉस प्रोवाइड करेंगे? नो. क्या हम उनको इतनी सारी बैलेंस शीट प्रोवाइड करेंगे? नो. दे आर मोर इंटरेस्टेड टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, द प्रॉफिट पोजीशन एज अ होल. दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग कि मुंबई ब्रांच ने क्या अर्न करा, दिल्ली ब्रांच ने क्या अर्न करा, अहमदाबाद ब्रांच ने क्या अर्न करा, जयपुर ब्रांच ने क्या अर्न करा. नो, ये सब बातें नहीं जाननी है. उनको ये जानना है कि इस ग्रुप ने कैसा परफॉर्म करा
और वो जो ग्रुप का परफॉर्मेंस है दैट विल बी रिवील्ड ओनली व्हेन वी कंबाइन ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इनटू अ सिंगल स्टेटमेंट, राइट। तो ये हमारे इस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव है कि हम अंत में एक ऐसी बैलेंस शीट बनाएं और अंत में एक ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं जो हमें ये शो कर दे कि इस ग्रुप ने एज अ होल, इस एंटिटी ने एज अ होल कैसा परफॉर्म किया। एंड दैट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट विल बी रिफ्लेक्टेड टू ईच एंड एवरी एक्सटर्नल और द इंटरनल यूजर ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है बच्चों, तो अब देखिए जरा, हम यहां पे लिख रहे हैं to understand the concept of accounting for independent branches, comma, following rules should be kept in mind. Following rules should be kept in mind. बच्चों, इसके अकाउंटिंग समझने के लिए हमें कुछ रूल्स का ध्यान रखना होगा, और ये रूल्स बेसिकली आपके स्टेप्स की तरह भी आप मान सकते हैं कि क्या स्टेप्स हैं अकाउंटिंग करने के, हम ये भी बात भी कह सकते हैं। सबसे पहला रूल, ऑल ब्रांचेस। अच्छा, एग्जाम में हमें कितनी ब्रांचेस दे सकते हैं? 140 ब्रांचेस दे नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। तो सिंप्लिसिटी के लिए हमारे एग्जाम्स में एक ही ब्रांच का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक हेड ऑफिस एक ब्रांच, ओके। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बट प्रैक्टिकली बहुत सारी ब्रांचेस हो सकती हैं। इन रियल लाइफ देयर आर मोर देन वन ब्रांचेस, ऑब्वियस सी बात है। सो ऑल ब्रांचेस मेंटेन their accounts according to डबल एंट्री सिस्टम। सभी ब्रांचेस जो हैं, जितनी भी इंडिपेंडेंट ब्रांचेस हैं, वो सभी ब्रांचेस अपने सेपरेट अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगी यूजिंग द डबल एंट्री सिस्टम, ओके। ये हमारा पहला रूल है जो आपको मान के चलना है कि सभी ब्रांचेस ने अलग अलग सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करे होंगे। दूसरी बात, क्योंकि ब्रांच हेड ऑफिस का यूनिट है, तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है कि ब्रांच और हेड ऑफिस आपस में कुछ डीलिंग्स भी करते होंगे, यस और नो। फॉर एग्जाम्पल, हेड ऑफिस ने कुछ गुड्स हैं वो ब्रांच को सप्लाई करे, और ब्रांच क्या करता है, उन गुड्स को सेल करता है। ऐसा मान लेते हैं कि जो हेड ऑफिस है वहां पे मैन्युफैक्चरिंग करी जा रही है, और हेड ऑफिस गुड्स को मैन्युफैक्चर कर करके ब्रांच को प्रोवाइड करता है, यानी कि ब्रांच मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, तो ब्रांच क्या करता है, ओनली गुड्स की सेलिंग करता है। जैसे आपने देखा होगा जितने भी ऑटोमोबाइल के शोरूम्स हैं, तो फैक्ट्री तो किसी और लोकेशन पर होती है, बट जो डीलर्स के शोरूम्स हैं वो अलग अलग जगह पर होते हैं। अब जो डीलर है वो तो मैन्युफैक्चरिंग करता नहीं है, गाड़ी मैन्युफैक्चर कहीं और होती है, तो वहां से फैक्ट्री से डीलर के पास में आती, डीलर क्या करता है, गाड़ी को बेच देता है, राइट। तो यानी यहां पे जो ब्रांच है उसके पास में गुड्स कहां से आ रहे हैं, फ्रॉम द हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस और ब्रांच बहुत बार आपस में डीलिंग्स करते हैं, तो इन डीलिंग्स को कैसे रिकॉर्ड करा जाएगा? सो टू रिकॉर्ड द इंटर यूनिट डीलिंग्स, आप मेरी बात को समझेगा, इंटर यूनिट डीलिंग्स यानी डीलिंग्स बिटवीन ब्रांच एंड द हेड ऑफिस। व्हाट डू दे डू? ब्रांच विल मेंटेन एन अकाउंट कॉल्ड द हेड ऑफिस अकाउंट, यानी ब्रांच अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हेड ऑफिस अकाउंट ओपन करेगा, और ऐसे हेड ऑफिस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ब्रांच अकाउंट ओपन करेगा। क्यों ओपन करेगा? जिससे वो आपस में अपनी डीलिंग्स को रिफ्लेक्ट कर पाए। हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में पूरे साल भर में क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुए उनको रिफ्लेक्ट करने के लिए ये अपने कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंट्स को ओपन करेंगे। यानी कि हेड ऑफिस ओपन करेगा ब्रांच अकाउंट और ब्रांच ओपन करेगा हेड ऑफिस अकाउंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इंटर यूनिट ट्रांजैक्शंस
इंटर यूनिट ट्रांजैक्शंस, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हुआ ट्रांजैक्शंस बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच. इंटर यूनिट transactions are the transactions between head office and branch. So inter unit transactions must be recorded by all the units involved in the transaction. बच्चों इस बात को समझना बहुत ध्यान से, क्योंकि इसी पॉइंट में अक्सर गलती हो जाती है. जितनी भी यूनिट्स उस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं वो सभी यूनिट्स उस चीज की एंट्री बनाएंगी. यानी अगर ट्रांजैक्शन दो ब्रांचेस और हेड ऑफिस के बीच में है तो ये तीनों यूनिट्स को एंट्री बनाना पड़ेगा अपने अपने तरीके से. एंट्री कैसे बनेगा वो सिखाऊंगा मैं आपको भी आगे. अगर ट्रांजैक्शन चार यूनिट्स मतलब कि चार ब्रांचेस और एक हेड ऑफिस के बीच में है तो फिर उस केस के अंदर इन चारों ब्रांचेस और हेड ऑफिस को भी एंट्रीज बनानी पड़ेंगी. और ये एंट्री कैसे बनेगी? हेड ऑफिस विल मेंटेन अ ब्रांच अकाउंट एंड ब्रांच विल मेंटेन अ हेड ऑफिस अकाउंट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जितने भी यूनिट्स उस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं सभी यूनिट्स को सेपरेटली अपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रीज क्रिएट करना है. इज दैट क्लियर? तो मैं आगे यहां पे लिख रहा हूं, thus branch will maintain head office account. Branch will maintain head office account and head office will maintain branch account. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हेड ऑफिस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं तो क्या अलग अलग ब्रांच के नाम पे अकाउंट ओपन होगा? यस, ऐसा ही होगा. अगर हेड ऑफिस की ब्रांच मुंबई में भी है, दिल्ली में भी है, पुणे में भी है तो पुणे ब्रांच अकाउंट, दिल्ली ब्रांच अकाउंट, मुंबई ब्रांच अकाउंट, इस तरह से आप अकाउंट्स ओपन करेंगे. विल मेंटेन ब्रांच अकाउंट in their books of accounts respectively. In their books of accounts respectively. Is that clear? Point number 1 and point number 2 clear हुआ. सभी ब्रांचेस अपने सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे. ये पॉइंट नंबर 1 था. पॉइंट नंबर 2 में लिखा जितने भी ट्रांजैक्शंस ब्रांच और एचओ के बीच में इंकर होंगे तो उसको दोनों यूनिट्स में रिकॉर्ड करा जाएगा. मोर ओवर ब्रांच जो है वो हेड ऑफिस अकाउंट मेंटेन करेगा और जो हेड ऑफिस है वो ब्रांच अकाउंट मेंटेन करेगा अपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिस्पेक्टिवली. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ब्रांच will prepare its own trial balance. Branch will prepare its own trial balance and head office will prepare its own trial balance. ठीक है बच्चों, आपके पास ब्रांच का ट्रायल बैलेंस अलग से अवेलेबल होगा और हेड ऑफिस का ट्रायल बैलेंस अलग से अवेलेबल होगा. ऑब्वियसली बात है, अगर हमने डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करा है तो इसका मतलब जर्नल बनाया है, लेजर बनाया है. और अगर जर्नल लेजर दोनों अवेलेबल हैं तो दोनों का ट्रायल बैलेंस डिफरेंटली हमारे पास में अवेलेबल होगा ही होगा. फिर हम क्या करेंगे, इस ट्रायल बैलेंस की मदद से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं ब्रांच और हेड ऑफिस के अलग अलग. ठीक है, तो अब मैं यहां पे लिख रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
financial statements of all units shall be prepared. Financial statements of all units shall be prepared individually. यानी कि अगर कुल मिलाकर 141 यूनिट्स हैं जिसमें एक हेड ऑफिस है और 140 ब्रांचेस हैं, तो आपको सभी यूनिट्स के ट्रायल बैलेंस, आपको सभी यूनिट्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो इंडिविजुअली प्रिपेयर करने हैं। और फिर अंत में क्या करना है? अंत में हमें इन सबको मर्ज करना है। जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं कुल मिलाकर 141 यूनिट्स के, इन सबको मर्ज करके हमें एक सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोड्यूस करना है, जो हमारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है। तो आपको मैंने कहा था कि जो रूल्स मैं आपको यहां पे लिखवा रहा हूं, ये रूल्स बेसिकली आपके स्टेप्स भी कह सकते हैं हम इस चैप्टर के, यानी कि हम इस सीक्वेंस से बेसिकली अकाउंटिंग करने वाले हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फाइनली a consolidated statement of financial position, finally a consolidated statement of financial position must be presented by merging the branch balances with head office balances। ठीक है बच्चों, जो भी ब्रांच के बैलेंसेस हैं वो आपको हेड ऑफिस के बैलेंसेस के साथ में मर्ज करना होगा, जिससे हम एक कंबाइंड स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। एंड दैट इज द मोस्ट यूजफुल स्टेटमेंट फॉर ऑल द यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इट इज बेसिकली अ समराइज स्टेटमेंट दैट गिव्स यू अ total idea about the business done by all the units in that particular group. Is that clear? Are you able to understand these rules? The branches will maintain their own set of books of accounts by using the double entry system. The inter-unit transactions must be recorded by all the units involved. Branch will have its own trial balance, head office will have its own trial balance. You will prepare the financial statements individually of the branch and the head office, and finally you will merge them up. This is our accounting process for the independent branches. And ये accounting कैसे करेगी वो अपन डेफिनेटली आने वाली क्लासेस में समझने वाले हैं। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं आपको आज की क्लास में केवल इतना ही समझा रहा हूं। हमने इंडिपेंडेंट ब्रांच जो है वो शुरू कर दिया है। ठीक है, उसका टॉपिक हमने शुरू कर दिया, कॉन्सेप्ट आपको मैंने सिखा दिया। आगे हमें क्या करना है उसका भी मैंने आपको एक समरी दे दिया। हमें बेसिकली एक सिंगल स्टेटमेंट प्रोड्यूस करना है जिससे हम समझ पाए कि ब्रांच के रिजल्ट्स क्या हैं और हेड ऑफिस के रिजल्ट्स क्या हैं इन अ कंबाइंड वे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है जो आपको मैंने आज की क्लास के अंदर बता दिया है। अब आने वाली क्लासेस में हम इसके प्रोसेस को और एलैबोरेट करेंगे, हम इसके कुछ एडजस्टमेंट्स को समझेंगे, हमें मर्जिंग से पहले कौन कौन से टास्क और करने होंगे, इन बातों पे थोड़ा अपन और चर्चा करने वाले हैं आने वाले सेशंस में। ठीक है बच्चों, तो आपको कुछ भी नहीं करना, जो भी हमने अभी आज पढ़ा है उसको रिवाइज करके आना है अगली क्लास में, जिससे हम अपने आने वाले क्लासेस के अंदर इस कॉन्सेप्ट को और थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर पाए। राइट? So see you all in the next class. Till then, bye bye.